Hi, what's up, you guys? Welcome to the 9th and 10th Unacademy CBSE channel. I hope कि आप सब healthy हैं और ठीक से हैं. तो चलिए, I'm your educator श्रेया कौशल. For those of you जो कि नए हैं इस चैनल पे या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में. मैं अभी सोशोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई लिव इन दिल्ली and I study in Miranda House. I am a civil services aspirant. I'm a musician, a painter, and a reader. And most importantly, I'm your guide through 9th standard chemistry and history. History अगर आपको मुझसे पढ़ना है, then download the Unacademy app and follow me over there. And वहाँ पे आपको मेरे सारे free history lessons पढ़ने मिल जाएंगे. All right. So, guys, today what we're going to study about is atoms and molecules. आज मैं एक बहुत special lesson conduct कर रही हूँ जहाँ पे 1 hour में मैं आपका पूरा atoms and molecules का chapter cover करवा दूँगी, ठीक है? This will be like जैसे हम crash course की तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका exam है कल, आपको एक जगह जल्दी revision चाहिए, then this is your to go place. Share this video with your friends ताकि वो लोग भी crash course sort of कर सके atoms and molecules का. So without wasting further time, since आप लोग ये video YouTube पे देख रहे हैं, so I must tell you that this is Unacademy's class 10th and 9th CBSE channel and you are joined with me Shreya Kaushal. So since आप ये video YouTube पे देख रहे हैं, you might or might not be exposed to the platform of Unacademy. तो आपको तो पता ही होगा that Unacademy is India's largest online learning platform. तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, तो अगर आप अनअकैडमी इंस्टॉल करिएगा देन जस्ट विथ दैट आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. बहुत सारे एजुकेटर्स ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं. येस, दीज लाइव क्लासेस आर फ्री. आप उनसे सीख सकते हैं. मेरे जैसे एजुकेटर्स आई टेक अ लॉट ऑफ फ्री लाइव क्लासेस एंड प्लस टेस्ट और क्विजेस भी रेगुलरली होते हैं. बट प्लस के साथ आपको क्या बेनिफिट्स है दैट अपार्ट फ्रॉम फ्री लाइव क्लासेस आपको रेगुलरली आपके पोर्शन पे लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते रहेंगे. नॉट ओनली दैट, आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा ना, यानी कि आपके जिस चैप्टर को कब ब्रेक डाउन होगा, किस तरह से होगा, कब कब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, you will be way ahead of your school. And not only ahead of your school, you would be at the top of your school. All right, why? Because हमारे जो educators हैं, we prepare courses according to your syllabus. Yes, तो आपको परेशान नहीं होना है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे. That is all of our burden. All you have to do is that you have to tune in to Unacademy, get a plus subscription, and you are all set. And of course, once you get a plus subscription, you have unlimited access. That's right, you have unlimited access. यानी कि एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाता है और दैट टू यू कैन वॉच फ्रॉम एनी ऑफ योर डिवाइसेस, right? So these are just like what we say the tip of the iceberg. So there's a lot of more benefits that Unacademy Plus has to offer you. Check it out for yourself. Download the Unacademy app, watch some free live classes, and know what are you signing up for. And it's amazing, guys. So Unacademy पे आप ऐसा एक स्कूल इमेजिन करिए, ठीक है? Imagine that you're going to a school जहाँ पे आप को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, यू नो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, यू नो, एंड साइंस. सो ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स यू आर बीइंग टॉट इन द स्कूल. और इस स्कूल में आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे अपने प्रोफेशंस में एक्सपर्ट्स हैं. दे आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया. सो अनअकैडमी को आप इसी स्कूल की तरह समझिए. दिस इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट्स, and that too from the top educators. These are the top educators of the country. So one school, all subjects and top educators of the country. All of them are experts in their fields. तो आप ऐसे एक स्कूल में पढ़ने जा रहे हो जहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ाएगा वो बेस्ट पढ़ाएगा. आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे, यानी कि नॉट जस्ट साइंस. यू हैव टू स्टडी मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एज ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स. And all you have to do is to download the Unacademy learning app from the platform of either, if you have an iOS device, then the App Store, Play Store, either
ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, make an account, and first thing that you do after making an account is you follow your teacher Shreya Kaushal at Shreya Kaushal. मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इज ऑल्सो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अपना अकाउंट बनाइए। मैंने बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करके रखे हैं, आप कोई भी इनमें से क्लासेस देखिए एंड आप जब कन्विंस हो जाएगा कि हाँ भाई प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, बिकॉज आपको ले लेना चाहिए, then what you gotta do is that you have to select your plan and you have to use my referral code which is Shreya and get a 10% off. जैसे ये है 9th to 12th का सब्सक्रिप्शन, बट अगर आपको सिर्फ 9th का सब्सक्रिप्शन लेना है then you can get it for 11,250. This is originally for 12,500, बट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं या जेई के एस्पिरेंट हैं देन वी हैव स्पेशल कोर्सेज जो कि आपके नीड्स के लिए केटर करते हैं, ठीक है। सो 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए या फिर 10, 11, 12 का चाहिए या फिर नीट का चाहिए या फिर जेई का चाहिए, है ना, अब किसी भी चीज़ का चाहिए तो आप वो ले लीजिए और उस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। दैट इज 10% ऑफ ऑन एनी कोर्स यू वांट टू टेक। एंड व्हाट इज माय रेफरल कोड? इट इज सिंपली माय नेम, इट्स श्रेया। So don't forget to use my referral code, guys. I work very hard to create these videos for you. And remember me when you get a plus subscription. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैंने जाना कि मेरा कोई स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके. It would mean the world to me, guys. So go for it. Use my referral code and let's crack it, guys. What are we waiting for? Alright, so let's start with atoms and molecules. This is 1 hour, 1 chapter. Buck up, get your notebooks and let's start. So the first things we're going to do today is introduction. यानी कि ये जो atoms का concept है, the concept of परमाणु, कि अगर मैटर को डिवाइड करते रहो तो वो इंडिविजिबल एक पार्ट आएगा जो कि इंडिविजिबल होगा. ये कब सोचा गया था, कि किसने सोचा था, कब सोचा था, एंड चलिए अब इसके बारे में जाने. सो एंशिएंट इंडियन और एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स में भी है महर्षि कनद एंड पकुदा कात्यायमा. And ancient Greek philosophers में we are going to talk about Democritus and Leucippus. All right. So we have Maharishi Kanad, Pakuda Katyayama, and Democritus and Leucippus. These are ancient Indian, and these are Greek philosophers. तो महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसोफर थे गाइस, जिनका मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, मैटर, व्हाट इज मैटर? इट इज एवरीथिंग अराउंड अस. आई एक्सपेक्ट यू टू नो एट दिस पॉइंट व्हाट मैटर इज, ठीक है. तो अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो इट विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट एक पॉइंट आएगा जब हम डिवाइड उसे और नहीं कर सकेंगे. और ये बात उन्होंने कब कही थी गाइज? ये बात उन्होंने 500 BC में ही कही थी. एंड उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु, ठीक है. ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु. ओके, तो दिस वाज महर्षि कनद का मानना. फिर उसके बाद पकुदा कात्यायमा ने यही बात और आगे ले गई. ये परमाणु का जो आइडिया था महर्षि कनद का, पकुदा कात्यायमा इस आइडिया को और आगे ले गए और उन्होंने क्या कहा कि ये जो परमाणु के पार्टिकल्स हैं ये साथ मिलके हमारे पास जितना भी फॉर्म ऑफ मैटर है वो बनाता है. यानी कि दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म टू गिव अस द मैटर दैट वी सी अराउंड अस. यानी कि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारे आसपास जो मैटर है वो बनता है. ये किसने कहा था? ये पकुदा कात्यायमा ने कहा था. सो दिस वाज अबाउट एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स. और हम कब की बात कर रहे हैं गाइस? वी आर टॉकिंग अबाउट 500 BC. दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. देन वी टॉक अबाउट ग्रीक फिलोसफर्स. ये ग्रीक फिलोसफर्स कौन है? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस. ये दोनों ग्रीक फिलोसफर्स हैं. इन्होंने अराउंड द सेम टाइम यानी कि 500 BC के आसपास ही सिमिलर थ्योरी दी. इनका भी यही मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब उसे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो जैसे महर्षि कनद ने इस इंडिविजिबल पार्ट को परमाणु बोला था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इसे एटम का नाम दिया. ओके, दे कॉल्ड दीज एटम्स व्हाट वी नो एटम्स टुडे. ओके, लेकिन ये जितने डिडक्शंस थे ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स के, ये जो इतना इनका फिलॉसफी था परमाणु एटम का कि ये सब मिल के मैटर बनाता है, ये सारी चीज़
बस फिलॉसफी थी गाइज। और जब मैं बोल रही हूँ फिलॉसफी थी तो उससे क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव नहीं हुआ था कि ये जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये सच है कि नहीं। क्यों नहीं प्रूव हो पाया था? बिकॉज हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 500 BC की। उस समय एक्सपेरिमेंट इन आइडियाज़ पे कंडक्ट करना हो सकता है पॉसिबल ही नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो ऑल ऑफ दीज वर मेरली फिलोसफीज, देवर जस्ट थियोरीज। ऑलराइट, तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होने कब शुरू हुए? इस पे एक्सपेरिमेंट लेट 1700s या फिर 18th सेंचुरी से साइंटिस्ट ने इन थियोरीज पे, एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स की थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना शुरू किया। और अब हम इन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। और ये कौन थे? एंटोइन लावियोसियर सबसे पहले। एंटोइन लावियोसियर का नाम हम बहुत सुनेंगे। इन्होंने फाउंडेशन ले किया था ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनके बारे में हम और जानेंगे, लावियोसियर और प्राउस के बारे में अब हम जानेंगे। तो ये क्लियर है, ये स्लाइड क्या बात करता है कि कब से ये परमाणु का आइडिया आया, किसने दिया, और कौन से ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में आके इन आइडियाज़ को एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द स्लाइड टेल्स। नाउ मूविंग ऑन, एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट टू इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है भाई, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो गाइस, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हर चीज़ का हमें एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि कोई चीज़ किसी के साथ कंबाइन कर रही है तो वो क्यों कर रही है, किस रूल से कर रही है। तो बेसिकली जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जब कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो वो कंपाउंड्स किस तरह से बनेंगे, उन्हें कुछ रूल्स गवर्न करते हैं। और ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये हमें वो रूल्स बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो वी नो अबाउट 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें कितने लॉज ऑफ बेसिक पता है? कितने बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? 5 पता है। और अगर आपको इन पांचों के बारे में जानना है तो मैंने एक क्लास कंडक्ट कराई हुई है कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन्ड, ऐसे करके एक क्लास है। और ये क्लास आप कहाँ देख सकते हैं? ये क्लास आप फ्री में देख सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप। ओके, तो अगर आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में अच्छे से जानना है, थोड़े क्विजेस भी अटेम्प्ट करने हैं उन पे, तो ये सिंपली 35 to 40 मिनट्स की क्लास है। ठीक है, और इसमें आप एक नहीं, दो नहीं, सारे के सारे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिए थे, कब दिए थे, ये सब जान जाइएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, फॉलो मी देयर, और वहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आपका लिंक होगा। ओके, सो वॉच दैट वीडियो एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। बट अभी हम किन के बारे में जानेंगे? अभी हम 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, और चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था लावियोसियर ने। ओके, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोइन लावियोसियर। इनका क्या कहना था? ये लॉ अगर गाइज मैं एक सिंपल लाइन में आपको बताऊं तो पता है क्या है? ये लॉ है कि जब केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी कि कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, तो ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे X प्लस Y, ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनका हम केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये दे अंडरगो रिएक्शन एंड दे बिकम XY। ओके, तो इस लॉ का क्या कहना है? X और Y जो कि इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स हैं, उनका अगर हम मास लेंगे अलग अलग और उसे ऐड करेंगे, और XY का मास लेंगे विच इज द प्रोडक्ट, तो वो सेम होगा। यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से सेम होगा। यानी कि अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो मास ना ही एक्स्ट्रा बना ना ही कुछ कम हुआ। सो दिस इज व्हाट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज। तो इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, जिसमें बोला गया है कि ऐसे दो अलग अलग चीज़ों में आपको 2 अलग केमिकल्स लेने हैं, X और Y। उसे मिक्स मत करिए, उसका मास लीजिए, फिर मिक्स करिए, हीट मिक्स करिए, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, और फिर मास लीजिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मास दोनों का बिना मिक्स किए और मिक्स करने के बाद भी सेम आ रहा है।
तो mass of the sum of the reactant and the product during the chemical reaction remains constant. तो बेसिकली क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो है सो रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑलराइट, देन वी हैव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोला जाता है. इसे इसे प्राउस लॉ भी बोला जाता है. तो ये सारे नाम दिए गए हैं इसे. तो ये किसने दिया था? जिससे प्राउस लॉ बोला जाता है, तो आप एक जगह से समझ सकते हैं. जोसेफ एल प्राउस जो एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली उनका मेन कंट्रीब्यूशन था इस लॉ के लिए. तो लैवियोसियर ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलके, प्राउस वगैरह के साथ मिलके, इन्होंने ये कंपाउंड, एक बेसिकली ये लॉ अगर एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगी. ये कंपाउंड गाइस फॉर्म होता है, हम जानते हैं कैसे, कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ओके, तो इस लॉ का क्या कहना है कि एज लॉन्ग एज जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए वो प्योर है, तब इट डजेंट मैटर कि वो कंपाउंड किसने बनाया है, कैसे बनाया है. वो जो एलिमेंट्स जिनसे वो कंपाउंड बन रहा है उसका रेशियो बाय इट्स मास वो हमेशा सेम रहेगा. इट डजेंट मैटर कि किसने बनाया, कहाँ बनाया है. वो जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बनाया उसका रेशियो बाय मास हमेशा सेम रहेगा. तो अगर एक लाइन में अगर आपको समझना है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है. तो जैसे कि रेशियो बाय मास से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हमने H2O का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो इसका रेशियो बाय मास हमेशा 1:8 होगा. यानी कि भले ही आप अपने नल का पानी देखें या फिर आपका जो पीने का पानी होता है मिनरल वाटर, उसमें भी H2O के मॉलिक्यूल का रेशियो बाय मास 1:8 होगा. क्यों? मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है. एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है? ठीक है, सो वी हैव 2 एटम्स. ओके, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स. 1 हाइड्रोजन एटम का क्या मास होता है? 1 यूनिट्स. 2 हाइड्रोजन एटम्स का क्या मास होगा? 2 यूनिट्स. सो वी हैव 2 यूनिट्स. और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में? वी हैव 1 ऑक्सीजन एटम. सो ऑक्सीजन के एक एटम का क्या मास होता है? 16 यूनिट्स. सो 2 डिवाइडेड बाई 16, 1:8. तो ऐसे करके हम रेशियो बाय मास कैलकुलेट करते हैं. ओके, 1:8 आएगा आपका. तो पानी के हर मॉलिक्यूल में, यानी कि पानी के हर मॉलिक्यूल में क्या हमें पता चलेगा कि रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर वो सेम होगा, भले ही वो हम कहीं का भी पानी उठा रहे हैं. ओके, तो इन वाटर द रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर. इसी तरह से अमोनिया में, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, हमेशा 14:3 होगा. कार्बन का भी आप रेशियो बाय मास निकालिए और नीचे कमेंट करिए. कार्बन का CO2 का रेशियो बाय मास निकाल के कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी कि किसका करेक्ट आंसर आ रहा है. ओके, ऑलराइट. सो ये जो है रेशियो बाय मास का थ्योरी ऑफ इन अ कंपाउंड, इसका कंक्लूजन क्या था कि इससे हमें पता चला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में. अब यहीं से आप समझ सकते हैं, लॉ के नाम से ही आप समझ सकते हैं. ठीक है, इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं. और इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, जो कि एलिमेंट से वो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास. यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास वो जो एलिमेंट जिनसे वो कंपाउंड बन रहा है वो हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, सो दिस वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या प्राउस लॉ, आप जो भी बोले. ठीक है, ओके. ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है जॉन डाल्टन के बारे में. जॉन डाल्टन ने यही जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इन्हीं को पढ़ के कुछ एटॉमिक थ्योरी दी. तो जॉन डाल्टन के बारे में जब हम पढ़ते हैं देन वी गेट टू नो अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी.
ओके, सो व्हेन वी रीड अबाउट जॉन डाल्टन वी नो अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैटर बनाई थी। उन्होंने ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर था ये आइडिया पकड़ा, और जैसे कि ग्रीक्स ने एटम वर्ड यूज़ किया था, डाल्टन ने भी यही एटम का वर्ड उठाया। उनकी थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड थी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उनकी थ्योरी क्या बोलती थी? चलिए देखते हैं। डाल्टन की थ्योरी कुछ ऐसे जाती थी गाइस कि जितना भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जैसे कि महर्षि कनद और डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने कहा था, इन्होंने भी यही फॉरवर्ड किया आइडिया। दूसरा उनका क्या कहना था कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ था जो हमने पढ़ा था। तो डाल्टन ने यही किया कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो क्रिएट भी नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते केमिकल रिएक्शन में। तीसरा क्या पढ़ा हमने कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये तीसरा था। ओके, तीसरा एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट जो कि डाल्टन ने फॉरवर्ड किया था। चौथा क्या कहा था डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के एटम के मास और केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होगा नेचुरली, बिकॉज वो अलग अलग एलिमेंट का एटम है। ओके, उसके बाद क्या कहा डाल्टन ने कि एटम्स जो हैं वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। अगर आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे इन द अनअकैडमी का वीडियो जो मैंने पढ़ाया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन्ड, तो आप ये पॉइंट और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, छठा क्या था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये सब मिला के ये क्या फॉर्म करते थे? हमारे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने ये आइडियाज फॉरवर्ड किए थे। ओके, नेक्स्ट चलिए जानते हैं व्हाट इज एन एटम। एक एटम हम कर रहे हैं तब से एटम होता क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका साइज कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका मास होता है। तो चलिए ये सब जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्या स्टेप है कि ये एटम कितने बड़े होते हैं। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन ही गलत है, हाउ बिग आर एटम्स, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल। आप एटम्स को जैसे हम घर बनाते समय ब्रिक यूज करते हैं, तो आप वैसे ही एटम को एक ब्रिक की तरह समझ लीजिए, एक्सेप्ट कि वो ब्रिक के साइज का नहीं होता है। ब्रिक खुद ही एटम से बना होता है, बट इट इज लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर एटम से जुड़ जुड़ के, हमारे आसपास जो भी मैटर है वो एटम से जुड़ जुड़ के बना है। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम साथ में मिलके एक शीट पेपर के बराबर लेयर बनाते हैं। ठीक है, द रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी कि नैनोमीटर्स क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर, 10 to the power -9। ओके, तो हमारी जो पूरी दुनिया है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड इवन दो ये जो एटम्स हैं ये इनविजिबल हैं, तभी भी ये कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं जो भी हम करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल आई है जो कि हमें एटम्स को और साफ देखने में हेल्प कर सकती है, बट स्टिल इट इज स्टिल वेरी ब्लरी, बट देन स्टिल देयर इज दिस टेलीस्कोप कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, STM बोलते हैं। इसके थ्रू इसको यूज करके थोड़ा बहुत एटम्स का आप शेप वगैरह देख सकते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू अ स्क्रीन, ऑलराइट। So how big are atoms? They're very small, less than 1 nanometer in size. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैम अगर ये एटम्स इतने छोटे होते हैं तो क्या इनमें मास होता है? तो इसका आंसर है यस, these atoms do have mass, alright, atoms have mass, और ये मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटम को मास कौन सी चीज देती है? एटम को मास सब एटॉमिक पार्टिकल्स देते हैं। ठीक है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम और जानेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम जानेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में जो साइंटिस्ट की बात हो रही है उन्होंने कैसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी डिसप्रूव की, बिकॉज डाल्टन का क्या मानना था? डाल्टन का मानना था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, लेकिन जब हम एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, यानी कि सब एटॉमिक यानी कि एटम के अंदर, यानी कि एटम्स कहीं ना कहीं डिविजिबल होंगे, इसीलिए उनके अंदर के पार्टिकल्स की बात हो रही है। लेकिन खैर, दिस इज समथिंग टू डिस्कस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। फॉर राइट नाउ ऑल यू नीड टू नो इज अबाउट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एटम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है एक एटम का जो मास है, एज सिंपल एज दैट। उस एटम को मास क्या देता है? एटम इतना छोटा होता है तो एटम के पास मास कहाँ से आता है? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के एटम को मास देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं देते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर। तो इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं वो मिलके एटम को मास देते हैं। एटम के मास को हम C12 कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका स्टैंडर्ड लेके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप का अगर आपको मतलब जानना है देन जस्ट होल्ड ऑन। what you can do to learn about the meaning of isotope is watch my basics of chemistry video। ये अवेलेबल है यूट्यूब पे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आप इसे देख लीजिएगा तो आपको एक बार में बहुत सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, इंक्लूडिंग आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अदरवाइज ऑल्सो हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चिंता मत करिए। कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 बहुत कॉमनली फाउंड आइसोटोप है, यानी कि हर जगह मिलता है। फ्रॉम डायमंड टू यू हैव कार्बन 12 इन द ग्रेफाइट, यानी कि आपके पेंसिल के टिप में भी कार्बन 12 होता है। इसका एटॉमिक मास 12 AMU होता है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है एटम से वो उसका मास नंबर या फिर एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो एक एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और मास नंबर। इसके स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड लेते हैं ना कि इसके कंपैरिजन में, तो जैसे हाइड्रोजन का जो मास है इट इज 1/12 ऑफ कार्बन का मास। ओके, वाई? बिकॉज कार्बन का मास, कार्बन 12 का मास हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं 12 यूनिट्स। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड। सो यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स में एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले AMU में करते थे बट अब यूनिट्स में करते हैं। AMU स्टूड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, अब यूनिट्स में करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास इज जस्ट दैट। मैग्नीशियम का 24 यूनिट्स है, यानी कि मैग्नीशियम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका सम 24 होगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उसका 16, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उसका 14, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन 1 में। तो हाइड्रोजन 1 अभी छोड़ दीजिए, जब हम आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ओके, सिमिलरली क्लोरीन का 35.5 लेते हैं हम, क्लोरीन के आइसोटोप्स का एवरेज। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो उसका सम कितना हुआ? 40 यूनिट्स। तो इसी तरह, ऑलराइट, ठीक है। अब चलिए जाने सिंबल्स के बारे में, यानी कि सिंबल्स। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें किसी किसी सिंबल से डिनोट करना चाहिए। तो डाल्टन ने सजेस्ट किया, ये डाल्टन का ही सजेशन था कि सिंबल से एटम्स को डिनोट करना चाहिए। तो उन्होंने सिंबल यूज़ किया डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे भी बोला कि 1-2 लेटर्स ऑफ वो जो भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके नाम का 1-2 लेटर मिला के हम उसका सिंबल रख देते हैं। इनिशियली, यानी कि शुरू में क्या होता था कि उस एलिमेंट जहाँ पे भी पाया जाता था उसके ऊपर भी उसका सिंबल का नाम रख दिया जाता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, साइंसेज नहीं केमिस्ट्री, IUPAC, उसने बोला कि एलिमेंट्स जितने भी हैं उसका नाम, उसका सिंबल IUPAC ने अप्रूव करवाया। ओके, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनका नाम अब उनके इंग्लिश के नाम से, जिनका सिंबल उनके इंग्लिश के नाम के 2 लेटर से डिराइव होता है, जैसे कॉपर CU एट्सेट्रा, एल्यूमिनियम AL वगैरह, ठीक है। बहुत सारे हैं जिनका उनके ग्रीक, लैटिन वगैरह के नाम से डिराइव होता है।
एक और चीज़ क्या याद रखनी है, अगर एक सिंबल में 2 लेटर्स हैं यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो उसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। तो उसी तरह एल्यूमिनियम का AL, आर्गन का AR, उसके बाद अगर हम कोई ग्रीक नाम ले, आयोडीन जैसे आयरन का Fe इज ग्रीक फॉर फेरम, तो फेरम का शॉर्टकट Fe लिखा जाता है, ठीक है। लेड का वैसे ही प्लम्बम होता है, PLUMBUM, तो उसको शॉर्ट में PB लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम अपने ग्रीक वर्ड नाट्रियम से डिराइव होता है, ठीक है। तो हम इसका सिंबल Na लिखते हैं, यानी कि विच इज शॉर्ट फॉर नाट्रियम, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट रिमेंबरिंग दीज, ठीक है। So these were about modern day symbols. We got to know about atomic mass. How do atoms exist? तो एटम्स गाइज ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर एटम्स होते हैं, यानी कि जो बस नोबल या इनर्ट गैसेस के एटम्स होते हैं, ठीक है, बस वही अकेले एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, बाकी सब स्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो हमेशा रिएक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम noble gases, they can't exist on their own, therefore they form molecules and ions। और ये जो molecules and ions हैं, ये large number में मिलके हमारे आसपास का जो मैटर है वो बनाते हैं। तो चलिए अब मॉलिक्यूल्स के बारे में जानें, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, 2 या 2 से ज़्यादा एटम साथ मिलके दे मेक दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ओके। मॉलिक्यूल को स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट बोला जाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर तो हम जानते थे अभी तक कि एटम है, लेकिन एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव होता है नेचर में। तो मॉलिक्यूल को स्मॉलेस्ट पार्ट बोला जाता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और जो मॉलिक्यूल होता है एक एटम का, एक एलिमेंट का, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के एटम से बना होगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। सो इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। Atoms of a same or different elements join together to form molecules, यानी कि molecules 2 तरह के हो सकते हैं, या फिर सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या फिर 2 अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O जो कि एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल बना सकता है। तो चलिए अब जाने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होता है वो एक सिंगल एलिमेंट के एटम से बना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि जो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बस सिंगल यानी कि मोनोएटॉमिक होते हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी बोली जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में बस एक ही एटम है, यानी कि वो एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो मतलब वो कौन से हुए? वो हुए नोबल गैसेस, जैसे कि आर्गन, हीलियम, उसके बाद वी हैव क्रिप्टॉन वगैरह, नियॉन। तो ये सब नोबल गैसेस होते हैं और इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, यानी कि मोनोएटॉमिक, ओके। लेकिन ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, यानी कि 2-3 ऐसे करके, ओके। जैसे कि ऑक्सीजन डायटॉमिक हो सकता है, या अगर हम O3 की बात कर रहे हैं तो ट्राइएटॉमिक हो सकता है, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है वो ट्राइएटॉमिक, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम तो वो डायटॉमिक, ओके। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं गाइस एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, ओके। कुछ अब ये जितने भी हैं हम जान सकते हैं कि आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं, ओके। तो गाइज मेटल्स की क्या एक प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स ना, जैसे कि हम देख सकते हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, यानी कि एक मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4 एटम्स से बना है, 4 एटम्स के है ना। लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स में ऐसे छोटे छोटे नंबर्स नहीं होते, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत सारे एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनता है। तो इसके लिए गिनती पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम 1 मान के चलते हैं मेटल्स। और एक नॉन मेटल कार्बन,
कार्बन का भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल कार्बन की एटॉमिसिटी को 1 मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, दे कंप्राइज ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। ओके, बाकी सबकी एटॉमिसिटी यहाँ पे लिखी है, आप जरूर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जानते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स हम जान चुके हैं क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलके। तो H2O क्या है? H2O एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ओके, अगर हम एक H2O के बारे में बात करें, यानी कि वन वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसी तरह एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फिक्स्ड प्रपोर्शन की जब बात करें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जरूर याद रखिएगा। रेशियो बाय मास फिक्स्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1:8। ओके, रेशियो बाय मास यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8। ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में ये था। अब चलिए जानते हैं आयन क्या होता है। तो गाइस, हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है चार्ज में, यानी कि ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही एक एटम के पास चार्ज आ जाता है, यानी कि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तब हम उसे आयन बोलते हैं। तो आयन क्या है? आयन एक चार्ज पार्टिकल है जो कि या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। एक आयन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो हम उसे एनायन बोलते हैं, और एक आयन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हम उसे कैटायन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड Na+ और क्लोरीन माइनस से बनता है। ऐसे भी कुछ एटम्स होते हैं अगर आयन बहुत सारे एटम्स साथ में हैं, ठीक है, तो उन सबका चार्ज मिला के नेट चार्ज बनाया जाता है, और वो नेट चार्ज प्लस या माइनस आता है, फिर ये नेट चार्ज कैलकुलेट करके पता चलता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक चार्ज कैरी कर रहे हैं उन्हें पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। सो आयन्स मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, और अगर ऐसे ग्रुप को जो कि एक चार्ज कैरी कर रहा है उसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, तो आयन्स क्या है? आयन इज अ चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। कूल, नेक्स्ट स्टेप है हमारा। चलिए अब जानते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं गाइस? केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस केमिकल एलिमेंट का सिंबल, और दूसरा उस केमिकल एलिमेंट की वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट को देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। वैलेंसी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर अगर आपको अभी जानना है तो आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ठीक है, दिस बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वीडियो इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी एज वेल एज ऑन यूट्यूब। जस्ट सर्च माई नेम श्रेया कौशल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट इट। एंड आप वहीं के वहीं अभी के अभी वैलेंसी के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो आप अनअकैडमी पे भी जान सकते हैं। ठीक है, तो अभी वैलेंसी के लिए बारे में हमें क्या जानना है? ये वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या देने हैं या शेयर करने हैं टू गेट द ऑक्टेट स्टेट। ओके, तो हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या 2 चीज़ जाननी है? सिंबल केमिकल एलिमेंट की और उसकी वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, एंड ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. Okay? तो कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखते समय। सबसे पहले कि जो वैलेंसी और जो चार्ज है आयन पे, यानी कि वैलेंसी और चार्ज में आपस में बैलेंस होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि जब हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला बना रहे हैं जो कि एक मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मेटल की बात करें और नॉन मेटल की बात करें, तो मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड और उसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उसमें जो मेटल है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, ओके, और नॉन मेटल बाद में। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है कि एक कंपाउंड में जो कि पॉलीएटॉमिक आयन से बना है
उसमें अगर पॉली एटॉमिक आयन का चार्ज है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट दैट पॉली एटॉमिक आयन, जैसे कि OH, यहाँ पे अगर OH2 OH3 ऐसे करके होता है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन NaOH में OH का 1 होता है तो इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर OH यहाँ पे 2 या 3 होता है तो ऐसे करके ब्रैकेट करना पड़ता, ठीक है। तो NaOH OH का तो 1 होता है, वी डोंट नीड अ चार्ज, ऑलराइट, सो वी डोंट नीड अ ब्रैकेट। तो इस तरह के 3 रूल्स हैं। उसके बाद सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। तो 3 रूल्स फॉलो करते हैं जब हम सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। सबसे पहले तो कि उसे बाइनरी कंपाउंड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, ओके। उसके बाद जब हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं कंपाउंड्स का, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी हमें पता रहनी चाहिए और हम उसे क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है। जैसे H2O लिखना है मानिए, ठीक है। H2O एक सिंपल कंपाउंड है, तो हमें H2O हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी है 1 है, ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है 2 है। तो जब हम इसे क्रॉस ओवर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा H2O, ओके। तो दिस इज द क्रॉस ओवर। तो while writing the chemical formula of compounds we write the constituent elements and their valency। तो constituent elements क्या है H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। तो उसका सिंबल लिखा और फॉर्मूला लिखा, वैलेंसी लिखा, ओके। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया कि क्रॉस ओवर कर दिया वैलेंसीज को, क्रॉस ओवर किया तो 2 इधर चला गया, H का 1 इधर चला गया, तो क्या बना H2O, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं HCl का, ऐसे करते हैं हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 1, तो ये साथ मिलके HCl बनेगा, ओके। सिमिलरली H2O का तो मैंने बता ही दिया था, H2S, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऐसे करेंगे, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, CCl4 हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से करते हैं, ओके। तो हमें क्या जानना है, हमें सिंबल जानना होता है और वैलेंसी जाननी होती है। अब चलिए जाने अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल के बारे में हम जान चुके हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक या एक से ज्यादा एटम्स से बना हुआ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कहलाता है। ये एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट वो कहलाता है जो कि केपेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने को, यानी कि अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम व्हिच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड व्हिच डिस्प्लेज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिमिलरली गाइज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है और हम एटॉमिक मास जानते हैं यानी कि एक एटम का मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, अगर 2 एटम्स है तो उन दोनों एटम्स को मिला के जो मास निकलेगा वो उस मॉलिक्यूल का मास होगा। सिमिलरली 3 एटम्स से मॉलिक्यूल बना है, ट्राई एटॉमिक है, तो वो 3, जैसे ऑक्सीजन O3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वी हैव O3 का मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। तो इसमें O के ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3 है, तो 16 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 और कितने एटम्स है 3, तो 16 × 3, 16 × 3 48, तो 48 यूनिट्स होगा। तो मैंने तो यहीं पे बता दिया आपको मॉलिक्यूलर मास क्या है, बट एक बार फिर से स्लाइड देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का मास होता है जो कि सम ऑफ उसमें जितने एटम्स हैं उन सब का सम होता है, यानी कि उन सब का एडिशन करके जो भी मास निकलेगा वो उस मॉलिक्यूल का मास निकलेगा। ये क्या होता है, ये रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, और ये हम AMU या यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, ओके। तो 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। H2O का हमें मास कैलकुलेट करने बोला गया है। H2O का कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 1 × 2, 1 क्यों लिया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 1 प्लस 16, ओके, यानी कि 16 क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 2 + 16 विल बी इक्वल टू 18 यूनिट्स, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब हमें बोला गया है HNO3 का मास कैलकुलेट करने के लिए। तो हाइड्रोजन प्लस N नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा 15 + 48, $63 यूनिट्स आएगा गाइस, सॉरी मेरी मैथ्स थोड़ी स्लो है,
63 यूनिट्स इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा HNO3 का। ओके, अब फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है सब सीख गए। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब का मास मिला दो तो वो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब भाई फॉर्मूला यूनिट मास एकदम सेम प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपको फॉर्मूला यूनिट दिया हुआ है उसका मास निकालना है सेम तरीके से। डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस यही है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, यानी कि चार्ज्ड एटम्स हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस ये सम होता है ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस क्या बस होती है? डिफरेंस ये होती है कि हम फॉर्मूला यूनिट मास उन सब्सटेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। एग्जाम्पल दे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 into 23 plus 35.5 यानी कि 58.5 यूनिट्स। सिमिलरली आपको CaCl2 का कैलकुलेट करना है। Ca का क्या होगा? Ca का एटॉमिक मास हमारा होता है 40 यूनिट्स प्लस Cl2 यानी कि 35.5 यानी इंटू 2। Cl2 है ना, 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू 2 होगा 71 प्लस 40, तो ये कितना होगा? 111 यूनिट्स। ओके, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 111 यूनिट्स होगा। सिमिलरली अब आप मेरे को बताइए कमेंट्स में कमेंट करके NaOH का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा। कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। ओके, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पे आते हैं। अब कोई डरने की बात नहीं है। मोल कंसेप्ट जैसे हम दर्जन वर्ड यूज करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव एनी फियर अबाउट मोल कंसेप्ट इन योर माइंड की समझ नहीं आता है, आप अभी उसे निकाल दीजिए। ओके, नाउ लेट्स गेट टू मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? ठीक है, तो जो हम डजन वर्ड यूज करते हैं गाइस, डजन एज इन दर्जन, तो वो हम यूज करते हैं 12। जैसे एक दर्जन बनाना दे दीजिए तो आपको शॉपकीपर 12 बनानास देगा। ओके, सिमिलरली मोल का क्या मतलब होता है? मोल का जो वर्ड है उसका मतलब होता है हीप्स एंड पाइल्स, और इस वर्ड को अब यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए एक नंबर। जैसे कि दर्जन को यूज किया जाता है टू डिनोट 12, वैसे ही मोल को यूज किया जाता है टू डिनोट द एवोगाद्रोस नंबर। ओके, एवोगाद्रो कौन थे? लोरेंजो रोमानो कार्लो अमीडियो एवोगाद्रो, ये इस साइंटिस्ट का पूरा नाम था। लोरेंजो अमानो अमीडियो कार्लो एवोगाद्रो। ओके, इन्हें शॉर्ट में अमीडियो एवोगाद्रो ही बोलते हैं। तो ही केम अप विद दिस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे एवोगाद्रोस नंबर बोला जाता है और एक मोल को इस नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे अगर शॉप में जाके बोलेंगे कि मुझे एक मोल चॉकलेट दे दीजिए तो वो एकदम सही होगा, एक्सेप्ट कि उस शॉप में इतने सारे चॉकलेट्स नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज नंबर गाइस। दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो इसे एवोगाद्रोस नंबर बोलते हैं। हम ये नंबर यूज करते हैं टू डिनोट अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो 1 मोल, तो हम 1 मोल यूज करेंगे कि आप एक एटम में एक जैसे एक कार्बन के एटम में कितने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में, 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर हम यूज करें कि वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में टोटल कितने एटम्स होंगे? कितने होंगे? तो अगर हम मोल यूज कर रहे हैं तो कितने होंगे गाइस? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स होंगे। तो ये सिंपल नहीं हो गया? उसी तरह अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन नहीं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में? कितने होंगे? 1 मोल की बात हो रही है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास की तरह ये भी कैलकुलेट करने के लिए हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 लीजिए आप। ठीक है, इफ यू टेक 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, तो इस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में उतने ही पार्टिकल्स या एटम्स रहेंगे जितने 1 मोल
ऑफ एनी सब्सटेंस में रहेंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने 12 ग्राम स्टैंडर्ड लिया हुआ है. ओके, कार्बन 12 का को स्टैंडर्ड लिया हुआ है. ओके, तो 1 mole is the amount of substance that contains the same number of atoms or molecules or particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12. So while the atomic mass is the mass of one atom of the element, तो जैसे atomic mass हम जानते हैं, atomic mass क्या होता है guys? Atomic mass होता है mass of one atom of the element. तो कार्बन का क्या था? कार्बन का एटॉमिक मास 12 था. उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है. तो 1 मोल हाइड्रोजन का क्या है? 1 है. ओके, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? 1 ग्राम होगा. और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. वैसे ही अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे. ठीक है, और इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा 16 ग्राम्स, यानी कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. उसी तरह अगर हम 1 मोल ऑफ से नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14 यूनिट्स. तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ओके, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि 14 यूनिट्स है. एक नाइट्रोजन एटम का मास क्या होगा? 14 यूनिट होगा. तो एक मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा? 14 ग्राम्स होगा. ओके, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. उसी तरह लास्ट ले लेते हैं एक एग्जाम्पल. 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करना है, ठीक है, 1 मोल ऑफ Na. तो 1 मोल ऑफ Na यानी कि कितना ग्राम्स ऑफ सोडियम? 1 मोल ऑफ Na यानी कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम. और 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने सोडियम के एटम्स होंगे? 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स. ठीक है, क्लियर है? तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स या यूनिट्स. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास हम ये भी जान चुके कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. इट इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द एटॉमिक मासेस इन 1 मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका सम मॉलिक्यूलर मास होगा. उसी तरह 1 मोल क्या होगा? वो उसका मोलर मास होगा. तो मोलर मास को बेसिकली हम जैसे यूनिट्स में बात करते हैं ना 1 एटम के मास की, वैसे ही हम मोलर मास को ग्राम्स पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. ये दिस इज यूजुअली इक्वल टू द यूनिट्स, यानी कि अगर हम 16 यूनिट्स होता है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मास होगा? 16 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स मास होगा. तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द मोलर मास. आपको बस एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और वो हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का? मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. तो इससे आपका मोलर मास निकल जाएगा. ये कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बोला है, अगर आपको बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन सो एंड सो, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे फिक्स फॉर एग्जाम्पल दिस सेज कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग. 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं ये कैलकुलेट करो.
तो कितने मोल्स हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या दिया है मास ऑफ सैंपल 52 ग्राम्स, तो 52 डिवाइडेड बाय क्या होगा मोलर मास, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4 यूनिट्स, तो हीलियम का मोलर मास क्या होगा 4 ग्राम्स पर मोल। तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13, तो 13 मोल्स इसका आंसर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, so these are the three formulae that you will need again and again. So note these down, take a screenshot. Either way, I would suggest always note things down. Screenshot तभी लीजिए अगर आपके पास नोट करने का कोई means ना हो, because when you note things down तो आपकी ऐसे memory would be sharper. Otherwise screenshot लेके तो रख लिया फिर कभी delete हो गया, it doesn't matter. So always try to note things down. Alright guys, so this was the end of the chapter. Thank you so much. We have completed atoms and molecules. That was it. If you want to know any of these topics in detail, मैंने part by part ये पढ़ाया हुआ है. In atoms and molecules part 1, part 2, part 3 आप वो देख सकते हैं, या फिर अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं. आप मुझे अनअकैडमी पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है. सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको पता चल जाए जब मैं या फिर कोई भी और एजुकेटर इस चैनल पे लाइव आ रहे हैं, अपना वीडियो प्रीमियर कर रहे हैं. गाइस, यू नो व्हाट टू डू. You can download the Unacademy app, get the Plus subscription, and get a 10% off by using my referral code. Guys, it'll make me the happiest person on earth if you do, because I'll get to know that you are liking my classes and stuff. So it'll mean a lot to me. Use my referral code, get a Plus subscription. It's really affordable right now, so go ahead and get it. ले लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन, बहुत अफोर्डेबल है अभी. मेरा रेफरल कोड आपको यूज़ करना है ताकि आपको 10% ऑफ मिले. थैंक यू सो मच गाइज. डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मेरी अनअकैडमी के प्रोफाइल का भी लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन मैसेज मी ऑल्सो ऑन द अनअकैडमी ऐप. Thank you so much guys, I had a lot of fun learning with you, teaching you, and I will see you tomorrow with the next video. Bye bye.